کے پہلے آپ کو حروف تہجی یعنی مفرد حروف بتایا گیا، اس کے بعد مرکب الفاظ ملا ہوا بتایا گیا جو مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں 3 نشان جس کو اعراب کہتے ہیں اور جس کا نام حرف کے اوپر جو آئے گا اس کو زبر کہیں گے، اور نیچے آئے گا تو زیر کہیں گے، اور اوپر اس طرح سے گھما ہوا آئے گا تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ اگرچہ اردو میں لکھا نہیں جاتا ہے وہ، لیکن اس کی اہمیت ہے اور اس کا استعمال ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے بغیر اس کے آپ آواز اٹھا نہیں سکتے۔ اب دیکھیے جیسے ہم اگر بے کے اوپر دیں گے تو ہوگا با، جو ہندی میں ہم لکھا با، نیچے دیں گے تو ہوگا بی جو ہندی میں لکھا ہے، اور اوپر دیں گے پیش تو ہو جائے گا بو۔ یہ ہے با بی بو۔ جب آپ اردو کتاب پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے آپ دیکھیں گے، اگر تیز زبر زیر کا استعمال آپ کو بہت کم ملے گا، لیکن بہرحال یہ استعمال ہے، اس کے اوپر چھپا ہوا رہتا ہے۔ یہ ہے زبر زیر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، جب کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو یہ اپنی آواز آپ تک پہنچائے گا۔ جیسے بے بولتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ کا ہو جائے گا، نیچے دیں گے بھی ہو جائے گا، اوپر پیش دیں گے بو ہو جائے گا۔ یہ کسی حرف پر آنے کے بعد ہی جو ہے یہ استعمال یہ اپنی آواز ہے۔ تو با بی بو، اس کو اسی طرح سے بولیں گے، با بی بو۔ پہلے اگرچہ کہا جاتا تھا بے زبر با بے زیر بی بے تشکیل، یہ کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ بات کہی جاتی ہے بولیے کسی بچوں کو اتنا ہی بتائیں، با بی بو، 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 با بی بو۔ اسی طرح سے الف کے اوپر دیں گے آ ای او، جیم کے اوپر دیں گے جا جی یو، کاف کے اوپر دیں گے کا ای او، لام کے اوپر دیں گے لا لی یو، عین کے اوپر دیں گے آ ای او، میم کے اوپر دیں گے ما می مو، عین کے اوپر دیں گے آ ای او، غین کے اوپر دیں گے غا ای گو، سین کے اوپر دیں گے سا سی سو، سات کے اوپر دیں گے سا سی سو۔ تو یہ ہے اعراب، یہ ہے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، با بی بو، با بی بو، با بی بو۔ جیسے آپ لکھتے ہیں اس کو لوگ پڑھ تو دیتے ہیں بل، لیکن آپ اس کو دیکھیے جب پڑھیں گے بل تو اس کے اوپر زبر نہیں ہے، یا بل پڑھیں گے تو اس کے نیچے زیر نہیں ہے، بل پڑھیں گے تو پیش نہیں ہے، لیکن جب آپ آواز پر غور کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اس کے اوپر زبر ہے، جیسے پل، سننا، اس کو پل اس لیے لوگ کہتے ہیں جیسے صرف اس میں ہی رہتا ہے، اس کو بے بولتے ہیں، سمجھا، لیکن جب زبر دے دیں گے تو واہ ہو جائے گا، واہ ہو جائے گا، اور اس کو پڑھتے ہیں بل۔
तो इसका मतलब ये है कि बे के ऊपर ज़बर है, बे के ऊपर ज़बर है। तो जैसे जल, जल, मील, देखिए जल, जल, मील, इसका मतलब ये होता है कि जल जीम के ऊपर वो ज़बर दिया हुआ है, तभी तो जा हुआ। चे के ऊपर ज़बर है इसीलिए जा हुआ, मीम के नीचे जे है इसीलिए मिल हुआ। तो यही है उर्दू में इसका इस्तेमाल। तो आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी है ये। अगर आपसे कोई सवाल ये करता है, ये आप जल बोलते हैं, लेकिन जब अलग इसको करते हैं, ये होता है जीम और नाम, जीम नाम मिल के जल कैसे हो जाएगा, आवाज़ मिल नहीं रही। लेकिन जब आपको ये मालूम रहेगा कि इसके ऊपर आप ज़बर देंगे और कहेंगे ये इस तरह से है, जा और लाम, जल, जीम के ऊपर ज़बर है इसलिए लाम में मिला करके ये जल होगा। तो इस तरह से ये इराब का इस्तेमाल यहाँ ज़रूरी है या नागुज़ी है। अगर से ये लिखने में नहीं आता है, उर्दू में शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। लेकिन आप जैसे अरबी में जाएंगे तो बगैर इराब के आपका काम नहीं चलेगा। आप अलीफ के ऊपर ज़बर देंगे तो पढ़ा जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं पढ़ा, एक के ऊपर देंगे तो पढ़ा जाएगा, नहीं देंगे नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। अरबी में जैसे हम उर्दू में बोलते हैं बे, लेकिन उर्दू अरबी में बे नहीं बोला जाता, वो बा बोला जाता है, समझ में। अरबी में बा बोला जाता है और उर्दू में बे बोलते हैं, वही है। बा, दी, बू, ज़बर, जे, पेश, ये आपको याद रखना है। ज़बर के माना होता है ऊपर, ज़ेर के माना नीचे, पेश के माना आगे, समझा ना। ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश आगे। ज़बर, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, इसको इराब करते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। वैसे अब हम लिखते हैं, जैसे जा, जी, जू, ये है जा, जी, जू, बा, बी, बू, जा, जी, जू। इसी तरह से किसी भी हरफ पर ये इराब दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे लाम के ऊपर बोले ला, लाम के नीचे बोले ली, लाम के ऊपर बोले ली, ला, ली, लू, जा, जी, जू, ला, ली, लू, जा, जी, जू, ला, ली, लू, बा, दी, बू। याद रखिए, बा, दी, बू, जा, जी, जू, ला, ली, लू। तो याद रखिएगा, ये तीनों निशान को इराब कहते हैं, तीनों निशान को इराब कहते हैं और इसका नाम है ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर के माना ऊपर, ज़ेर के नीचे, ज़ेर के माना नीचे, पेश के माना आगे। ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज, जी, जू, ला, ली, लू, ज, जी, जू, ला, ली, लू, बा, दी, बू, ता, ती, तू, ता, ती, तू, सा, सी, सू, आ, ई, उ, रा, दी, बू, पा, ती, उ, दा, दी, दू, ना, नी, लू, मा, नी, लू, ला, ली, दू, का, की, कु, खा, फी, हु। ये इस तरह से हम आपको बताया कि ये हर हर्फ पर आता है और हर हर्फ की आवाज़ इसी तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे हर्फ
किसी भी हद तक जाए उसकी आवाज़ बदल जाएगी नहीं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं एक एक करके कि आ ई उ बा दी बू ता ती तू सा सी सू ता ती तू या जी जू हा ई हू सा सी हू चा ची चू दा दी दू रा दी हू। ये इस तरह से आवाज़ इसकी निकलती है, तो आपको भी यही आवाज़ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जब किताब पढ़ने लगेंगे तो आपको इसी आवाज़ से साधना पड़ेगा, इसी आवाज़ से मुलाकात होगी आपकी, समझ। जैसे आपको हम बताया पल चल नल मील दुख सुख, देख रहे हैं ना, दुख सुख तुम मन मौ, ये सब चीज़ है जिसके ऊपर इराब लगा हुआ है, बगैर इराब के ये नहीं चलेगा, इसलिए बगैर इराब के आवाज़ मुकम्मल नहीं होती है। इसलिए आपको ये जानना नहायत ज़रूरी है। ज़बर ज़े पेश, 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 आ ई उ ता बी उ ता ई तू ता ती तू सा सी सू। अब इसको आप अपने इसमें जहन में देखिए। आपको अभी तो एक हर्फ के बारे में बताया, मिला करके दो हर्फ में जैसे आप लिखते हैं दुख, जबकि ये खे बोलते हैं इसको, और इसको दाल बोलते हैं। इसके दुख होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन हम इसको दुख बोलते हैं इसलिए कि ये दाल के ऊपर इस तरह से पेश मौजूद है, समझे ना? दाल खे पेश दुख, समझा? यही है इराब का इस्तेमाल। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि कैसे ये दुख हुआ। कोई भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ये है मन, नून, मन कैसे हो जाएगा, इसलिए कि इसकी आवाज़ नीम है और नून है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप ये इराब लगाएंगे, जबर देंगे, तो मन हो जाएगा, इसलिए कि अब नीम नहीं है, अब ये माँ है, समझा? अब ये माँ है, नून में मिला दिया मन। पहले दाल था, लेकिन जब पेश दिया तो दू हुआ, दाल के पेश दू। यही है इराब का इस्तेमाल, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कितना जरूरी है ये। बा बी बू, 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 दा बी बू। अब देखिए, आप मामूली जो है कुछ भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आप खाना, हाँ ना, इसमें देखिए खे और अलीफ, खे और अलीफ है तो खा इसके होने का नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इस जबर का इस्तेमाल होता है, नून अलीफ जबर ना होता है, ये हो जाता है खाना, समझ गए? तो इनके उर्दू में लिखा भी रहता है, ये छुपा रहता है, इसलिए ये आवाज़ थोड़ा पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। और बसा अवकाश कभी ऐसा भी होता है कि वो है कुछ आप आदमी पढ़ता है, कुछ इसलिए पढ़ता है कि वहाँ ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल नहीं है, तो ये पढ़ते पढ़ते इसकी शनाख्त होती है, पहचान होती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बा बी बू, बा बी बू, या जी बू, ल ली लू, म नी मू, न नी नू, दा दी दू, रा री रू, सा सी सू, जा जी जू, बा बी बू, मा
मी नू, ला ली लू, दा दी दू। सुना, यही है इराब, यही है ज़बर जे पेश, 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 बा दी बू, बा दी बू। जैसे माँ मी माँ मी मू, माँ मी मू, ज़बर जे पेश। ये है इराब बा बी बू, मा नू नू, ना नू नू, ला ली लू, दा दी दू, जा दी दू, का की कू, खा खी कू, या की कू। ये है ज़बर जे पेश, ज़बर जे पेश, ज़बर के माना ऊपर, जेर के माना नीचे, पेश के माना आगे। समझा? ज़बर जे पेश, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू, मा नी मू, ला ली लू, ला ली लू, दा दी दू, का दी दू, का की दू, का की दू, या की दू, या की दू, या की यू, या की यू, या की यू। बा दी दू, मा नी लू, ला ली लू, दा दी दू, da di du, ja di du, ka di du, kha di ku, ja di du, ma ni nu, na ni nu, ya di yu, ba di du, cha chi chu, da di du। यही है इराब जो हरकत देता है। समझा ना, हरकत देता है। बा दी बू, ज़बर जे पेश, ज़बर जे पेश, ज़बर जे पेश, ज़बर जे पेश, दा दी दू, ला ली लू, मा नी मू, ना नी लू, या नी यू, का नी यू, हा नी यू। अब देखिए क्या होगा। हा दी दू, हा दी थू, ha thi thu, ja di thu, ma ni mu, ba di bu, ba di du, ma ni mu, ja di du, ha thi thu, ba di du, ma ni mu, ja di du, ha thi thu, ba di du, ma ni mu, ja di du, ha thi thu। यही है।
आपको मुफरद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज दोनों का जो ऊपर इराब लगा करके हम बताया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इसे पढ़ना है, इसकी आवाज़ क्या है। समझ गए? जैसे ही आप किसी भी हरफ पर इराब लगाएंगे इसकी आवाज़ बदल जाएगी। जैसे ये के ऊपर जबर देंगे, बा जेर देंगे, पेश देंगे, समझा? यही है बा बी बू, मा मी मू, ध धी धू, थ थी थू, थ थी थू, थ थी थू, समझा? यही है बा बी बू, झ धी धू, थ थी थू, ज़बर ज़े पेश, 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 बा बी बू, मा मी मू, ध धी धू, थ थी थू, यही है आ ई ऊ, बा बी बू, मा मी मू, ध धी धू, थ थी थू, थ थी थू, थ थी थू, गा गी गू, घा भी गू, ला ली लू, या ई यू, बा बी बू, ता ती तू, ता ती तू। अब आगे बढ़ते हैं हम और आपके सामने देखते हैं। जैसे आप लिखते हैं झलक, फलक, मुल्क, नवाज, ये सब आप लिखते हैं। झलक, मलक, तलक, दिल नवाज। इसमें देखिए इराब का कहीं कोई पता नहीं है। किताब भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आप जब गौर करेंगे तो आपको लगेगा सब में है। जैसे झा, जाहिर है कि बगैर जबर के नहीं होगा, क्या है तो उसको अगर अलग कर दीजिए तो ये झे हो जाता है। झा लक, ये लक जब आप बोलते हैं इससे पता चलता है कि नाम की तरफ जबर है, इसलिए ला बोलते हैं झा लक, लक, लेकिन होता है लौन। तो यही एराब की वजह से वो लक बोलते हैं। वैसे झलक में भी है, फलक में भी है, दिल नवाज में भी है। दिल ये तो दाल और लाम है, लेकिन ये दिल बोलते हैं। क्यों? इसलिए इसके नीचे जेर, दाल लाम जेर, दिल, ना वाव, ना नून के ऊपर जबर है इसलिए ना हुआ, वाव नहीं वाह है इसलिए दिल नवाज। तो इस तरह से जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये बगैर एराब के नहीं है, बगैर एराब के नहीं है। आपको अगर कोई अलग करने के लिए कहता है, मान लीजिए का आपसे कोई कहता है कि इस अलग से आप अलग कीजिए, इस अलग को आपको लिखना पड़ेगा। ये जब आप अलग करेंगे तो इसकी हैसियत इस तरह से बनेगी, तब ये कहीं जाके सही होगा। है लक, है लक, इसी तरह से हर तरह से हर जगह है कि आप इसकी याद रखें। पा बी बू, दा ती तू, दा ती तू, सा सी सू,
la, li, lu, na, ni, nu, ma, mi, mu, ba, bi, bu, ba, bi, bu, dha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, sa, si, su, ra, ri, ru, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, da, di, du, la, li, lu, ra, ri, ru, ta, ti, tu, ta, ti, tu, sa, si, su, pa, ti, u, ja, ji, ju, ya, ki, yu, na, ni, nu, ma, mi, mu, la, li, lu, pa, ti, u, dha, hi, yu, झलक, झलक, पलक, मलक, की, कू, कौ, के, को, ये सब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। यही है बा, भी, बू, बा, भी, बू, ता, पी, तू, का, पी, तू, सा, सी, सू, रा, री, रू, ला, ली, लू, बा, जी, बू, da, di, du, da, di, du, da, di, du, sa, si, su, cha, chi, chu, la, li, lu। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यही है मेरा। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं बदन, चमन, नमक, चलन, सब, देखो यही है बा, तन, च, मन, ना, मत, सा, लन, सब। यही है अराव, एराव, यही है एराव। बा, दन, च, मन, ना, मत, सा, लन, सब। अब जैसे आप लिखते हैं दल, दन, मन, जन, सब, खबर, शहर, रसूल, खुदा, अल्लाह, किताब, ये सब चीज़ तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। इसलिए आप किताब कोई भी किताब लीजिए, आपको मिलेगा, आप कर सकते। और जब पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आए। ऐसे आपकी समझ में बात नहीं है। चमन, कमल, फूल, गुल, शबाब, रहम, रहीम, चमन, ये सब चीज़ है जो आपको जानना है। वही बात होती है ज़बर, जे, पेश, ज़बर, जे, पेश, ज़बर, जे, पेश, ज़बर, जे, पेश, ज़बर, जे,
पेश ज़बर ज़ेर 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 पेश बदन चमन नमक हलन सब बा बी बू बा बी बू बा बी बू बा बी बू ता ती तू ला ली लू ना नी लू ना नी लू लिए रा ज़बर ज़ेर पेश 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 बदन चमन नमक हलन सब बदन चमन नमक हलन सब यही है इराब ज़बर ज़ेर पेश 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 बा बी बू बा बी बू बदन चमन नमक कलम सब बा बी बू सा ती तू सा ती तू सा ती तू बा बी बू बा बी बू बा बी बा बी बू ता ती तू ता ती तू सा सी सू ला ली लू ना नी लू बा बी बू ज़बर ज़ेर पेश ज़बर ज़ेर पेश ज़बर ज़ेर पेश ज़बर ज़ेर पेश ज़बर ज़ेर पेश
زبر زین زبر زین پیش 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 بدن چمن نمک حلل سر بدن چمن نمک دنگل من دنگل من شبنم قطن محنت قدرت ایشور ایشور دین دین شہر نہر شہر امر یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے سے سمجھ سکتے ہیں یہ علاج کے سلسلے میں آپ کو جہاں تک ضرورت تھی ممکن تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر زیادہ زیر پیش زیادہ زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش بدن چمن نمک حلل سر با بی بو با بی بو بدن چمن نمک حلل سر با بی بو با بو با بی بو بدن چمن نمک حلل سر با بی بو با بی بو با بی بو بدن چمن نمک حلل سر بدن چمن نمک حلل سر جی پی پی وی وی سی ڈی جی وی با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو کا تی تو کا تی تو با بی بو با بی بو کا تی تو کا تی تو با بی بو کا تی تو کا تی تو بدن چمن نمک حلل سر چمن کلر بدن پاک نپاک صاف اچھا خراب برا چاول دال گیہوں یہ سب آپ جب بولیں گے تو سب پر آپ کو نظر آئے گا پھر یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے اور آپ سے ملاقات بہت کم ہوگی ملاقات تو ہوگی لیکن بہت کم ہوگی لیکن
आपको पढ़ते पढ़ते इसकी शनाख्त हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। आप याद रखिए, तसलसल ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। बगैर इसके कोई आगे बढ़ा है और कर सकता है। इसलिए आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, दिखेंगे। और एक बात याद रखिए आप, क्या आप ये हरूफ तहज़ीब को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आप समाप्त पर भी गौर करेंगे कि ये और ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये और ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो आप ये चीज़ आगे निकल जाएंगे। आप याद रखिए, ये है इराब, ज़बर, ज़ेर, पेश, बादल, शामिल, हामिल, ताज़ी, समझा? यही है ba tần ba tần ba tần cha man ba tần cha man na man sab ha nan, समझा? यही बदन, चमन, नमक, कलम, सब याद रखिए। एराब इसी का नाम है। रबत, ये तेज जो अपने आप में ये कुछ नहीं है, लेकिन जब जैसे भी किसी तरह का रहेगा, ये अपने आप ये ज़बर, दिल, पेश, बदन, चमन, नमक, कलम, सब बा दी दू बा दी दू ज़बर, ज़ेर, पेश, बदन, चमन, नमक, कलम, सब बदन, बा दी दू बा दी दू ये ज़बर, ज़ेर, पेश। तो आप याद रखिएगा, ये इराब के तीन शक्लें हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर के ऊपर, ज़ेर के नीचे, पेश के जिस तरफ पर ये करेंगे, जैसे एक ऊपर दिया है वो हो जाएगा बी, सी, बा, दी, दी, बा, दी, दी।